بھارتی دہشت گرد، یہ جنگ نظر نہیں آتی لیکن لڑی جا رہی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی سازش، دہشت گرد تنظیموں کے خطرناک منصوبے اور ایک مرد مجاہد کی جرأت مندانہ جوابی کارروائیاں۔ دشمن جہاں بھی ہوگا ہم وہاں پہنچیں گے۔ بھارتی دہشت گرد۔ اگلے روز دوپہر کے بعد میں اور کمانڈو شیروان ایک بار پھر اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت ہمیں سمدو کے مکان کی طرف نہیں جانا تھا بلکہ پل والی پہاڑی کے عقبی علاقے میں جانا تھا جہاں سمدو پہلے سے وہاں بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ ہمیں پہاڑی پر ہی ایک جگہ درختوں کے نیچے بیٹھا مل گیا۔ کمانڈو شیروان وہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا، وہ اسی وقت واپس چلا گیا۔ میں نے اپنا خچر وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے باندھ دیا۔ سمدو چرواہے نے 3 بکریاں میرے حوالے کر دیں اور ایک درخت کی لمبی چھڑی بھی میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، نیچے گھاٹی کی طرف مت آنا، میں اسی جگہ نگرانی کروں گا۔ میں نے بکریوں کو ساتھ لیا اور انہیں منہ سے آواز نکال کر ہانکتا ہوا اس پگڈنڈی پر چلنے لگا جو پل کی پہاڑی والے قدرتی غار کی طرف جاتی تھی۔ میں نے صرف ایک بکری کی رسی تھام رکھی تھی، باقی 2 بکریاں اپنے آپ ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ پگڈنڈی پر درختوں کے گرے ہوئے پتے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں رک رک کر اور بکریوں کو چراتا ہوا آگے چل رہا تھا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے۔ میری تیز نگاہیں پہاڑی کی پگڈنڈی کے سامنے کی جانب تھیں۔ پگڈنڈی بل کھاتے ہوئی پہاڑی کے دامن میں جا کر جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ میں بکریوں کو ساتھ لیے رک رک کر جا رہا تھا۔ جہاں پگڈنڈی جھاڑیوں میں غائب ہو جاتی تھی وہاں آ کر میں رک گیا اور گردن کو کھجانے کے بہانے ادھر ادھر گردن گھما کر جائزہ لیا۔ وہاں مجھے آس پاس اوپر پہاڑی کی چوٹی پر کوئی فوجی وغیرہ نظر نہ آیا۔ میں نے رسی والی بکری کو وہیں ایک جھاڑی کی شاخوں سے باندھ دیا اور خاموشی سے قدم اٹھاتا جھاڑیوں کی دوسری طرف آ گیا۔ یہاں مجھے اونچے سرکنڈوں کے پیچھے ایک غار کا چھوٹا سا دہانہ دکھائی دیا۔ میں سرکنڈوں کو پیچھے ہٹاتا غار کے اندر چلا گیا۔ یہ غار 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک تنگ رستے کی طرح تھی جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی تھی۔ دیوار میں سے درختوں کی جھاڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ فضا میں مٹی کی مرطوب بو تھی۔ باہر سے دن کی روشنی چند قدموں تک ساتھ رہی، پھر میں اندھیرے میں آ گیا۔ غار کی دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھتا گیا۔ اچانک میرے پاؤں ایک تودے سے ٹکرائے۔ میں نے جھک کر ہاتھ لگا کر دیکھا۔ آگے مٹی کے ڈھیر نے غار کو آدھے سے زیادہ بند کر دیا ہوا تھا۔ میں اس کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف چلا گیا۔ یہاں بہت گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے جیب سے ماچس نکال کر جلائی۔ موم بتی میرے پاس ضرور تھی مگر میں اسے ابھی روشن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماچس کی روشنی میں 3-4 قدموں کے فاصلے پر ایک دیوار تھی، یہاں غار بند ہو جاتی تھی۔ میں نے بائیں جانب دیوار پر نگاہ ڈالی، وہاں محراب کی شکل میں اور گولائی میں دیوار ایک جگہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب آیا تو دیا سلائی بجھ گئی۔ اب میں نے موم بتی روشن کر کے زمین پر ایک جگہ لگا دی اور بیٹھ کر باہر کو نکلی ہوئی گول دیوار کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ یہ سیمنٹ کی گول دیوار کا ایک حصہ تھا جو غار سے باہر نکلا ہوا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ اس بہت بڑے ستون یا کنویں کی گول دیوار کا ایک حصہ تھا جس میں پہاڑی کے پل کے ایک طرف کے ترچھے فولادی گارڈر دنسے ہوئے تھے اور جس میں سیمنٹ، پتھر اور لوہے کے ٹکڑے ڈال کر بھر دیا گیا تھا۔ یہ پہاڑی والے پل کی بنیاد کا ایک ستون تھا۔ دوسرا ستون سامنے والی پہاڑی کی دیوار کے اندر ہوگا۔ ان دونوں ستونوں میں سے ہر ایک ستون پل کی بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر یہ ستون آگے کی جانب گر جاتا ہے یا نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی فولادی گارڈرز بھی نیچے بیٹھ جائیں گے اور پل ایک طرف سے نیچے برساتی نالے میں گر جاتا۔ مگر یہ کوئی عام قسم کا ستون نہیں تھا کہ جس کے ساتھ بم باندھ کر اسے اڑا دیا جاتا۔ یہ ستون ایک قسم کا لوہے اور سیمنٹ سے منہ تک پلستر کیا ہوا ایک کنواں تھا جس کے اندر لوہے کے 4 گارڈر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے کم از کم 50 فٹ تک دنسے ہوئے تھے۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے ستون کی محرابی دیوار پر آہستہ سے مارا۔ ایسی آواز آئی جس نے مجھے بتا دیا کہ ستون اندر سے خالی نہیں ہے بلکہ پتھر کی طرح سخت اور اندر سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ستون کا یہ گھیرا نیم گول شکل میں کم از کم 20 فٹ کا ہوگا۔ اس ستون میں شگاف ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس میں شگاف ڈال کر اندر دنسے ہوئے لوہے کے گارڈروں تک پہنچنے کے لیے اس الیکٹرک برمے کی ضرورت تھی جس سے یورپ اور امریکہ میں پہاڑوں کی چٹانوں کو توڑا جاتا ہے، اور اس کی اتنی آواز ہوتی ہے
कि कम से कम 1 मील के अंदर कोई शख्स बात नहीं कर सकता और सोना चाहे तो सो नहीं सकता। यहाँ तो मैं हथौड़ी और छेनी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऊपर पुल का पहला सिरा था और वहाँ फौजी छावनी बनाकर बैठे हुए थे, जो बड़ी आसानी से ये आवाज़ सुन सकते थे और गार में आ सकते थे। मैंने उस जगह को कुरेदा जहाँ स्तून के सीमेंट की गोलाई पहाड़ी गार की दीवार में दंसी हुई थी। ये पहाड़ मिट्टी के थे और वहाँ मेरे कुरेदने से मिट्टी बाहर गिरने लगी थी। अचानक बाहर से फाख्ता की बोलने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गया। मेरी नजरें गार के दाने की तरफ जमी हुई थी। गार का दाना रास्ते में मिट्टी के तूते की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसमें से दाखिल होने वाली दिन की रोशनी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही थी। बाहर गहरी खामोशी छाई हुई थी। फाख्ता की ये आवाज यकीनी तौर पर समदू चरवाहे की थी, जिसने खतरे की बू सूंघ कर मुझे अपने मुंह से फाख्ता की आवाज निकालकर खबरदार किया था। जब 5 मिनट गुजर गए और बाहर से दोबारा कोई आवाज न आई तो मैंने मोमबत्ती उठाकर जेब में डाली और आहिस्ता आहिस्ता गार के मुंह की तरफ चलने लगा। गार के दाने के करीब आकर मैं एक बार फिर रुक गया, कान लगाकर बाहर की आवाजों को सुनने की कोशिश की। बाहर किसी वक्त दरख्त पर किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ रही थी, मगर ये फाख्ता की आवाज नहीं थी। मैं बड़ी एहतियात के साथ गार के अंदर से निकलकर सरकंडों की ओट में बैठ गया और सरकंडों में से दूसरी तरफ देखने लगा। मेरी तीनों बकरियां झाड़ियों के पास मौजूद थी। एक बकरी बंधी हुई अपनी जगह पर खड़ी खड़ी झाड़ियों पर मुंह चला रही थी और दूसरी 2 बकरियां कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे इधर उधर मुंह मार रही थी। समदू चरवाहा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं आहिस्ता से उठकर सरकंडों से निकलकर झाड़ियों के पास आ गया और मुंह से हा हा ऊ की आवाजें निकालता बंधी हुई बकरी को खोला और पगडंडी पर वापस चल पड़ा। जरा आगे गया तो समदू को देखा, जो एक पत्थर पर बैठा हुआ था और हाथ के इशारे से मुझे पीछे जाने का कह रहा था। अगर आप इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मैं तेजी से उल्टे पांव झाड़ियों के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद समदू चलता हुआ मेरी तरफ आया और मुझे ऐसा इशारा किया कि मैं बकरियों को लेकर दूसरी तरफ पहाड़ी के ऊपर हमवार तख्ते पर आ जाऊं। वो खुद भी बकरियों को हाँकता हुआ ऊपर की तरफ ले गया। उसके पीछे पीछे मैं भी अपनी तीनों बकरियों को उसके साथ चलाता लेकर ऊपर की तरफ चल पड़ा। ऊपर दरख्तों के दरमियान एक हमवार जगह थी जहाँ समदू जमीन पर बैठा हुआ था। मैं भी उसके पास जाकर चरवाहों की तरह जमीन पर बैठ गया। समदू कहने लगा, जिस वक्त मैंने तुम्हें फाख्ता की आवाज निकालकर खबरदार किया था, उस वक्त ऊपर से एक डोगरा फौजी नीचे उतरकर गार के करीब से गुजरा था। मुझे डर लगा कि कहीं वो गार के अंदर तो नहीं जा रहा। वो अंदर तो नहीं आया था? मैंने कहा, नहीं, अंदर नहीं आया था। वैसे मैंने तुम्हारी आवाज सुनते ही मोमबत्ती बुझा दी थी और चौकस हो गया था। समदू कहने लगा, अब तुम वैसा ही करो कि मेरे पीछे पीछे थोड़ा फासला डालकर चलते आओ। हमें अब यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मुझे डर है कहीं किसी फौजी को तुम पर शक न पड़ जाए। वो बकरियों को लेकर आगे आगे चल पड़ा। मैंने भी अपनी तीनों बकरियों को अपने साथ लिया और समदू के पीछे चलने लगा। दूसरी तरफ थोड़ी सी उतराई उतरने के बाद दूसरे टीले के दामन में एक जगह दरख्तों में चश्मा बह रहा था। बकरियां चश्मे में से पानी पीने लगी। हमने भी थोड़ा थोड़ा पानी पिया और पत्थरों के पास आकर बैठ गए। समदू ने कहा, यहाँ पहाड़ियों में बड़ी जल्दी शाम हो जाती है। सूरज पहाड़ों के पीछे जाता है तो अंधेरा छा जाता है। मैं इस वक्त बकरियां लेकर घर वापस जाता हूँ। तुम भी अब वापस चले जाओ। क्या तुम्हें वापसी का रास्ता मालूम है? मैंने कहा, मुझे सारे रास्ते याद हो गए हैं। समदू ने पूछा, कोई मतलब की बात मालूम हुई गार के अंदर से? मैंने उसे कुछ न बताया, सिर्फ इतना ही कहा, अभी तो मैं गार को अंदर से अच्छी तरह देख भी नहीं सका। मुझे कुछ रोज तक यहाँ आना पड़ेगा, फिर कुछ फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए। मैंने बड़ी अक्लमंदी की बात की थी और ये हमें करनी ही चाहिए थी, और हम ऐसा ही किया करते थे कि अपना राज किसी दूसरे पर उस वक्त तक जाहिर नहीं करते थे जब तक कि हम मजबूर ना हो जाएं और दूसरे आदमी के बारे में हमें यकीन हो जाए कि उसको राज बताने से कुछ नहीं होगा। चुनाचे हमने समदू चरवाहे को ये नहीं बताया था कि हम ऊपर पहाड़ी पुल को उड़ाना चाहते हैं। कमांडो शेरवान ने उसे यही कहा था कि हम लोग कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिदों के लिए वहाँ एक खुफिया ठिकाना बनाना चाहते हैं, जहाँ हम भारतीय फौजियों से छीना हुआ असला वगैरह भी रख सकते हैं
और मौका मिलने पर ऊपर जाकर घात लगाकर पुल पर से गुजरते भारतीय फौजी सप्लाई के ट्रकों पर हमला भी कर सकें और उन्हें नुकसान पहुंचा सकें। समदू चरवाहे के फरिश्तों को भी ये खबर नहीं थी कि हमने भारतीय फौजियों के कितने अहम और मजबूत तरीन पुल को तबाह करने का मंसूबा बनाया हुआ है। समदू उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अभी दिन की रोशनी बाकी है, तुम्हें दूर जाना है, रास्ते में अंधेरा ना हो जाए, तुम वक्त पर निकल जाओ। मैंने उसे बताया कि मैं कल उसी वक्त फिर आऊँगा, इसी चश्मे पर आकर मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारी बकरियां लेकर इसी जगह आ जाऊँगा। मैंने बकरियां उसके हवाले की और वापस रवाना हो गया। शाम का अंधेरा चारों तरफ हो चुका था जब मैं कमांडो शेरवान की पहाड़ी कमीनगाह में पहुंचा। कमांडो शेरवान बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही दूसरे कमांडो मुजाहिदों से अलग होकर वो मुझे नीचे तहखाने में ले गया और अंदर दाखिल होते ही बोला, कोई उम्मीद नजर आई है? मैंने उसे गार के अंदर की सारी तफसील बता दी और कहा, वक्त जरूर लगेगा लेकिन टारगेट मारने की पूरी उम्मीद है। कमांडो ने मुझसे पूछा, तुम्हें जिस जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता दो, सारी चीजें मुहैया कर दी जाएंगी। क्या ख्याल है, तुम अकेले ही काम कर लोगे? तुम्हारे साथ किसी दूसरे मुजाहिद को ना भेज दूं? मैंने कहा, अभी किसी दूसरे मुजाहिद की जरूरत नहीं है, वैसे भी वहाँ 2 आदमियों का जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर जरूरत महसूस हुई तो फिर तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, मैं हर वक्त तैयार हूँ। कमांडो शेरवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दूसरे दिन मैं जिस खच्चर पर सवार होकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हुआ, उस खच्चर पर एक गठरी भी लदी हुई थी। उस गठरी में 4 रोटियों के अलावा लोहे की बड़ी मजबूत गेंदी और एक आहनी मोटी सलाख भी थी। समदू को मैंने दोपहर का वक्त दिया हुआ था। मैं ठीक वक्त पर पहाड़ी के चश्मे पर पहुंच गया। मैं खच्चर एक तरफ बांधकर चश्मे के पास बैठ गया और गठरी में से एक रोटी निकाल कर खाने लगा, ताकि अगर कोई देखे तो यही समझे कि चरवाहे को भूख लगी थी और चश्मे पर रोटी खाने के लिए बैठ गया है। इतने में मुझे बकरियों के खुरों के टक टक और उनके मिमियाने की आवाज़ें आईं। फिर मुझे समदू भी नजर आ गया। उसके पास 6-7 बकरियां थीं। उनमें से 3 बकरियां मेरी थी, यानी मेरे लिए थी। मैंने अपनी बकरियां अपने साथ ले ली और ऊपर गार की तरफ चढ़ाई चढ़ने लगा। जहाँ से पगडंडी गार की तरफ जाती थी, वहाँ से अपनी 3 बकरियां लेकर समदू से अलग हो गया। समदू अपनी बकरियां लेकर पहाड़ी की उस ढलान पर चला गया जहाँ से फौजी पुल नजर आता था और जहाँ वो हर रोज बकरियां चराने जाता था। गार के करीब आकर मैंने कल की तरह बकरियों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और खुद अच्छी तरह से चारों तरफ देखभाल कर गार में दाखिल हो गया। मैंने रोटियों वाली गठरी झाड़ियों में ही छुपा दी थी। मैं लोहे की मोटी सलाख और दोनों खुरपियां अपने साथ लेता गया था। मैं गार के अंदर से वाकिफ था। दीवार के साथ साथ चलता उस तरफ आ गया जहाँ मिट्टी का ढेर पड़ा था। ढेर पर से गुजरकर मैं गार में उस मकाम पर आ गया जहाँ पुल के सतूनों की मेहराबी दीवार बाहर को निकली हुई थी। मैंने मोमबत्ती रोशन करके दीवार के साथ इस तरह लगा दी कि उसकी रोशनी सिर्फ दीवार के एक खास हिस्से तक पहुंच रही थी। मैंने खुरपी हाथ में लेकर उस जगह से दीवार को खुरचना शुरू कर दिया जहाँ सतून के सीमट वाली दीवार पहाड़ी गार की मिट्टी और पत्थर की दीवार के साथ आकर मिल गई थी। मैं खुरपी इस तरह से चलाने लगा कि उसकी आवाज़ पैदा ना हो। पहाड़ चूंकि मिट्टी के थे, इसलिए खुरपी चलाते वक्त वैसे भी कोई आवाज़ पैदा नहीं होती। सतून के दीवार की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रही थी। दरमियान में किसी जगह कोई पत्थर आ जाता तो लोहे की मोटी सलाख को अंदर डालकर उसे उकेड़ कर बाहर निकाल लेता और दोबारा खुरपी चलानी शुरू कर देता। मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे और कान बाहर भी लगे हुए थे कि फाख्ता की आवाज़ ना आ जाए। अभी तक सब खैरियत थी। बाहर से किसी वक्त बकरियों के मिमियाने की हल्की हल्की आवाज़ आ जाती थी। मिट्टी में पत्थर मिले हुए थे। जब कोई पत्थर आ जाता तो मैं उसे खुरपी की जगह लोहे की सलाख इस्तेमाल करना पड़ती थी। मैं काफ़ी देर तक अपने काम में लगा रहा। इस दौरान मजबूत कुएं की मेहराबी दीवार के साथ शिगाफ पड़ गया था जो आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो रहा था। मैं खुरपी इस तरह चला रहा था कि उसकी कम से कम आवाज़ पैदा होती थी। अचानक बाहर से फाख्ता की आवाज़ आई। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैं दबे पांव चलता गार में जो मिट्टी का तोदा था उसकी ओट में बैठकर गार के दाने की तरफ देखने लगा। गार के दाने में दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मुझे बाहर 2 आदमियों के बातें करने की आवाज़ आने लगी। उनमें एक आवाज़ समदू चरवाहे की थी। अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। मैं तोदे की दूसरी तरफ से होकर गार के दाने के पास आकर बैठ गया। मैंने सर थोड़ा आगे करके देखा जहां मैं अपनी 3 बकरियां खुली छोड़ आया था।
वहाँ समदू चरवाहे के पास एक भारतीय फौजी खड़ा उससे बातें कर रहा था। वो समदू से कह रहा था, तुमने इन बकरियों को इधर क्यों छोड़ रखा है? तुम्हें मालूम नहीं ये आउट ऑफ बाउंड्री एरिया है? समदू चरवाहे ने कहा, सूबेदार जी, जानवर अपने आप इधर आ गए हैं। मैं अभी इन्हें यहाँ से ले जाता हूँ। मैं तो खुद इधर नहीं आता जी। ठीक है, इधर से बकरियां ले जाओ और खबरदार इस तरफ मत आना। अच्छा जी, ठीक है सर। और मैंने देखा कि समदू बकरियों को हाँक कर पगडंडी पर दूसरी तरफ ले गया, मगर भारतीय फौज का सूबेदार, जिसने डोगरा हैट पहन रखा था और कंधे पर राइफल लटका रखी थी, वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। मगर मुझे ऐसा लगा जैसे उसे कुछ शक पड़ गया है। गार के दाने के आगे ऊंचे सरकंडे थे। मुझे भारतीय सूबेदार सरकंडों के दरमियान से नजर आ रहा था, जो कुछ दूर खड़ा था। फिर टहलता टहलता सरकंडों की तरफ आया। मैं दौड़कर मिट्टी के तोदे के पीछे हो गया। मेरी नजरें गार के दाने पर लगी थी। मेरा ख्याल था कि वो गार के अंदर आएगा। मेरे पास रिवाल्वर जरूर था, जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था, और रिवाल्वर ना भी होता तो मैं उस भारतीय फौजी को आसानी से हलाक कर सकता था। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ये भारतीय फौजी पेट्रोल ड्यूटी पर था, और अगर ये वापस अपने यूनिट में ना जाता तो उसकी तलाश में दूसरे फौजी सारे इलाके को कंगाल डालते, और अगर उसकी लाश ना भी मिलती तब भी वो समदू चरवाहे को जरूर पकड़ कर ले जाते, और कुछ पता नहीं था कि समदू अपनी जुबान खोल दे। चुनाचे मैं दिल में दुआएं मांगने लगा कि सूबेदार दूर ही रहे और गार के अंदर ना आए। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली और सूबेदार वहीं से वापस मुड़ गया। जब मैंने देखा कि वो ऊपर की तरफ पहाड़ी पर चढ़ गया है तो मैंने दोबारा दीवार खोदनी शुरू कर दी। मैं दिन ढलते तक अपने काम में मसरूफ रहा। जब गार में आती दिन की रोशनी मध्यम होने लगी तो मैंने खुरपी और लोहे की सलाख और बड़ी खुरपी को वहीं मिट्टी के ढेर में छुपा दिया और बड़ी एहतियात से चलता हुआ गार से बाहर आ गया। बाहर मेरी बकरियां नहीं थी, बकरियां समदू ले गया था। मैंने झाड़ियों के पास पड़ी हुई अपनी लंबी सोटी उठाई और चरवाहों की तरह दरख्तों और झाड़ियों की तरफ देखता पगडंडी पर से गुजर कर नीचे चश्मे पर आ गया। चश्मे का पानी पिया, मुंह धोया और वहीं बैठकर समदू का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बकरियों को हाँकता हुआ समदू भी आ गया। वो मेरे करीब बैठते हुए बोला, मुझे लगता है कि फौजियों को कुछ शक पड़ गया है। बेहतर है कि तुम कुछ दिन यहाँ ना आओ। मैंने कहा, समदू भाई, ये तुम्हारा ख्याल है। मैंने तुम्हें भारतीय फौजी से बातें करते देख लिया था और तुम दोनों की बातें भी सुनी थी। मेरे ख्याल में तशवीश की कोई बात नहीं है। अगर खतरे की बात हुई तो मैं अपने आप यहाँ से गायब हो जाऊंगा। समदू खामोश रहा। मैं सूरज ग्रूब होने के बाद कमांडो शेरवान की कमीनगाह में वापस आ गया। कमांडो शेरवान को सारी बात बताई। वो बोला, समदू चरवाहे को डर लगा है कि कहीं उस पर कोई मुसीबत ना आ जाए। मेरा ख्याल है तुम उसको बताए बगैर गार में जाना शुरू कर दो। कमांडो शेरवान ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। अब समदू चरवाहे की मदद की मुझे जरूरत नहीं रही थी। अगर खतरे वाली सूरत हाल पैदा हो भी जाती है तो मैं उसे संभाल सकता था। कमांडो शेरवान ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में अभी वहाँ कितना काम बाकी रह गया है? मैंने उसे बताया कि जिस रफ्तार से दीवार में सुराख किया जा रहा है उसके मुताबिक अभी मजीद 3-4 दिन मुझे अकेले ही ये काम करते रहना होगा। पहाड़ी की दीवार में जैसे जैसे अंदर की जानिब सुराख हो रहा है, पत्थर ज्यादा आने लगे हैं। कमांडो शेरवान बोला, मेरा ख्याल है हमें समदू चरवाहे को फिर भी अपने एतमाद में लिए रखना जरूरी है। मैं उसे खुद मिलकर समझा दूंगा। उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं गार में काम करता रहा। चौथे दिन दीवार में कुएं की गोल दीवार के साथ काफी बड़ा शिगाफ पड़ चुका था। 5वें दिन टारगेट का मुआयना करने के लिए कमांडो शेरवान भी चरवाहे के बेस में मेरे साथ गार में आ गया। हम मोमबत्ती की रोशनी में दीवार के शिगाफ में रेंग कर अंदर तक गए। पहले मैंने अंदर जाकर कुएं की दीवार की गोलाई को टटोल कर देखा। फिर कमांडो शेरवान ने भी अंदर जाकर देखा। वो बाहर आकर कहने लगा, मेरा ख्याल है पुल के गार्डर इसी कुएं के अंदर गए हुए हैं, बाहर कोई गार्डर नहीं है। मैंने कहा, इंजीनियरिंग के नुक्ते नजर से इस कुएं के साथ नीचे की जानिब दूसरे कुओं का होना जरूरी है। हमारा टारगेट दूसरे कुएं के गार्डर हैं। कमांडो शेरवान कुछ मायूस नजर आ रहा था। मैंने उसे कहा, तुम मुझे सिर्फ 3 दिन और दे दो। मुझे यकीन है कि चौथे रोज मैं अपने टारगेट पर पहुंच जाऊंगा। कमांडो शेरवान खामोश रहा। अगले रोज मैं अकेला ही गार में आया। समदू चरवाहे को मैंने थोड़ा बहुत हौसला जरूर दिया था कि वो फिक्र न करे, लेकिन वो फिक्रमंद लग रहा था। मैंने अपने काम की रफ्तार तेज कर दी। 5वें दिन मैंने दीवार में इतना शिगाफ डाल दिया कि मैं रेंगने की बजाय घुटनों के बल शिगाफ के अंदर जा सकता था।
5वें ही दिन तीसरे पहर में दीवार में खुरपी से मिट्टी खुरच रहा था कि खुरपी दीवार में लोहे से टकराई। पहले तो मैं समझा कि ये कोई पत्थर की सिल है। जब मिट्टी हटाई तो मोमबत्ती की रोशनी में मुझे गार्डर का एक सिरा दिखाई दिया। ये लोहे का एंगल था जो ऊपर से आता हुआ नीचे चला गया था। मैंने जल्दी जल्दी नीचे से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। नीचे से दूसरे कुएं का गोल थड़ा नमूदार हो गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। उस कुएं में पुल के गार्डर दंसे हुए थे। ये 4-4 गार्डरों का एक एक आहनी सतून था जो तिरछा होकर कुएं में उतर गया था। मुझे उन्हीं गार्डरों की तलाश थी। उस रोज जब मैंने कमीनगाह में वापस जाकर कमांडो शेरवान को ये खुशखबरी सुनाई, उसके चेहरे पर इस मिशन के सिलसिले में जो मायूसी छाने लगी थी वो एकदम दूर हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम टारगेट मार लेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे मिशन का दूसरा एक्शन शुरू होगा। दूसरे रोज कमांडो शेरवान मेरे साथ गार में आ गया। मोमबत्ती की रोशनी में जब उसने भी शगाफ के अंदर जाकर लोहे के गार्डरों को देखा तो खुश होकर बोला, यह पुल का दूसरा पांव है। असल में यही पुल के इस सिरे की बुनियाद है। अगर ये न होता तो पुल एक तरफ से नीचे नाले में गिर पड़ता और हम यही चाहते थे। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।